বৃষ্টিতেও এত ঝড় জলেও যখন আপনাদের একটাকেও সরাতে পারেনি, তখন মনে রাখবেন মানুষের এই বৃষ্টি বিজেপিকে 24 সালে ভারতবর্ষ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। আমাদের লড়বার ক্ষমতা আছে, ওদের লড়বার ক্ষমতা নেই। আমাদের মেরুদণ্ড সোজা, ওদের মেরুদণ্ড বেঁকা। ওদের মেরুদণ্ডে একদিকে ইডি, একদিকে সিবিআই, অন্যদিকে ইনকাম ট্যাক্স, অন্যদিকে জিএসটি। আমাদের মেরুদণ্ড সোজা, আমরা মাথা উঁচু করে চলি। আমি আজকে আপনাদের কয়েকটা কথা বলবো। আমি জানি আমার চারপাশে ঠিক ঠিক করছে মাথা, প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে আছে, নিচে কারো বসার কোনো জায়গা নেই। রাস্তায় প্রায় 1 হাঁটুর মতো জল জমে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা অপেক্ষা করছেন। গত 2 বছর আমরা 21শে জুলাই করতে পারিনি। কেন পারিনি? তার কারণ কোভিডের জন্য। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের কয়েকটি কথা বলতে চাই। যারা বৃষ্টিতে ভিজেছেন, আমার কথা না শুনে চলে যাবেন না তো? এখন গিয়ে কিন্তু লাভ নেই, তার কারণ রাস্তাটাই পুরো জ্যামে জ্যাম। পার্ক স্ট্রিটের মাথা ও মাথা, এ মাথা সে মাথা, সব মাথা জ্যাম। দেখলেন 21শে জুলাই বৃষ্টি হয়। ঈশ্বর আল্লাহর কি মেহেরবানি, বৃষ্টি কিন্তু হলো, ঝমঝমাঝম বৃষ্টি। আর বিজেপি খুব হাসছিল, সিপিএম খুব কাঁদছিল, আর অন্যান্যরাও হাসছিল, ভাবছিল গেল এত কষ্ট করে 21শে জুলাইয়ের ছেলেমেয়েরা জেলা থেকে জেলায় এসছে, ব্লক থেকে ব্লকে এসছে, কেউ হয়তো একটা জামা কাপড়ও সাথে নিয়ে আসেনি, পুরো ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে, তাই হয়তো তৃণমূল কংগ্রেসের মিটিংটাই নষ্ট হয়ে গেল। দেখো তৃণমূল কংগ্রেস দলটা কেমন মিষ্টি জানো, কখনো রৌদ্র, কখনো বৃষ্টি, কখনো দগ্ধ, কখনো সৃষ্টি। বিজেপি সব জায়গায় সরকার ভাঙছে, এটাই ওদের কাজ। বাংলায় আমাদের অনেকভাবে হারানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। 2021 সালেও মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে 21 কখনো ভুলে যায় না, 21 কখনো মানুষকে ভুলতে দেয় না। আরে তৃণমূল কংগ্রেস থাকলে ফ্রিতে রেশন পাবেন, তৃণমূল কংগ্রেস থাকলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবেন, তৃণমূল কংগ্রেস থাকলে কন্যাশ্রী পাবেন, তৃণমূল কংগ্রেস থাকলে স্বাস্থ্যসাথী পাবেন, তৃণমূল কংগ্রেস থাকলে কৃষক বন্ধু পাবেন, তৃণমূল কংগ্রেস থাকলে পেনশন পাবেন, ভাতা পাবেন, জয় জহর পাবেন, ঐক্যশ্রী পাবেন, সবুজ সাথী পাবেন, ট্যাব পাবেন। ইনকামের দিক থেকে পশ্চিমবাংলা প্রথম, কৃষকদের সবচেয়ে বেশি ইনকাম পশ্চিমবাংলায়। আমি গর্বিত। আপনারা জানেন সারা ভারতবর্ষে 45% বেকারি বেড়েছে, আর বাংলায় 40% বেকারি কমে গেছে, দারিদ্রতা কমে গেছে, এটা মাথায় রাখবেন। আমি আপনাদের আগেই বলেছি আমার চ্যালেঞ্জ, একদিকে কৃষি, অন্যদিকে শিল্প। জোর করে কারো ঘর ভাঙবো না, জোর করে কারো জমি দখল করব না, কিন্তু জেনে রাখবেন
দেউচা পাঁচমির কাজ শুরু হয়ে গেছে। 1 লক্ষ ছেলে মেয়ের চাকরি ওখানে হবে। যারা ট্রাইবেল ছেলে মেয়েরাও আছে তারা আনন্দের সাথে জীবনযাপন করবেন। তাজপুর পোর্ট হচ্ছে, আরো 12,000 কোটি টাকা ইনভেস্ট। সিলিকন ভ্যালি হচ্ছে, 50,000 আইটি জানা ছেলে মেয়ের ওখানে চাকরি হবে। মনে রাখবেন, জঙ্গলমহল সুন্দরী ডানকুনি থেকে পানাগড় হয়ে, বর্ধমান হয়ে, বাঁকুড়ার বরজোড়া হয়ে, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে 72,000 কোটি টাকা ইনভেস্ট হচ্ছে এবং সেখানে কয়েক লক্ষ ছেলে মেয়ের চাকরি হবে। মনে রাখবেন, ডানকুনি টু অমৃতসর ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর হচ্ছে। আসানসোল সেল গ্যাস পাওয়া গেছে। রানীগঞ্জ থেকে জামুরিয়া, আসানসোলের বিভিন্ন জায়গা জুড়ে, বর্ধমান, পূর্ব পশ্চিম বীরভূম, একদিকে দেউচা কয়লা, সবচেয়ে ভালো কয়লা পাওয়া গেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেউচায় যতটুকু বের করেছে সবচেয়ে ভালো কয়লা পাওয়া গেছে। আগামী 100 বছর এই দেউচা হয়ে গেলে বিদ্যুতের অভাব বাংলায় আর হবে না, বরঞ্চ বিদ্যুতের দাম কমে যাবে, আমরা বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারবো। পাঁচশোটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হচ্ছে। যত লেদার ইন্ডাস্ট্রি আছে সারা ভারতবর্ষে সব বাংলায় চলে এসছে। বানতলায় প্রায় 2.5 লক্ষ ছেলে মেয়ে চাকরি করছে। এমএসএমইতে 1.5 কোটি ছেলে মেয়ে চাকরি করছে। আমাদের টিচারিতেও কোর্টে কেস চলছে, তাই তা নাহলে 17,000 পোস্ট এখনো রেডি আছে। যে পোস্টগুলো ভর্তি করবার জন্য ডিপার্টমেন্টও রেডি আছে, কোর্টে কেস চলছে বলে আমরা করতে পারছি না। আমরা চাই চাকরি হোক, আর বিজেপি চাই চাকরি যাক। ওরা চায় না চাকরি হোক, তাই ওদের কুটুস কুটুস করে পিঁপড়ের কামড় দিচ্ছে, আর কামড় দিয়ে বলছে এই তো এখানে লেখাটা ভুল, ওই তো ওখানে তাই হয়েছে, তুমি কি করেছো বাবা? তোমার যদি আমি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ধরি, তোমার যদি আমি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ধরি, তোমার যদি আমি কোল ইন্ডিয়া ধরি, তোমার যদি আমি ডিফেন্স ধরি, তোমার যদি আমি সিভিল অ্যাভিয়েশন ধরি, কি করেছো? সব তো গুলে গুলে খেয়েছো বাবা, গোল্লায় গোল্লায় খেয়েছো। আর যত কিছু বাংলায় বলছে বাংলার লোককে চাকরি দেওয়া যাবে না, আলবাদ দেব। ক্ষমতা থাকলে তোমরা রুখবে, যাও। একদিকে তুমি আমায় বন্ধ করবে, অন্যদিকে আমি চালু করব। সিপিএম এর আমলে চাকরি হয়েছিল, একটা টিচারের চাকরিতে আমি অনেকের কাছে শুনেছি 10 লাখ 15 লাখ টাকা একটা চাকরি বিক্রি হয়েছিল। নাম বলে ছোট করতে পারি না। সিপিএম এর একটা কাগজ আছে, জিজ্ঞেস করুন তো দলের কাগজ, তার যত রিপোর্টাররা আছে তার ম্যাক্সিমাম তাদের বউরা সবাই টিচারিতে চাকরি পেয়েছিল কি করে? কোয়ালিটিতে পেয়েছিল, কোয়ালিটিতে পেয়েছিল, না ক্রেডিবিলিটিতে পেয়েছিল, না নাম্বারে পেয়েছিল? ছেলেরা পার্টি করবে আর বউরা চাকরি করবে, এই নিয়ে সিপিএম চাকরিগুলো দিয়েছিল, আমরা জানি এগুলো। তাহলে মুড়িতেও জিএসটি, বিজেপির বন্ধুরা মুড়ি খাবেন না? মিষ্টিতেও জিএসটি, মুড়িতেও জিএসটি, চিড়েতেও জিএসটি, দইতেও জিএসটি, লস্যিতেও জিএসটি, নকুলদানায় কত জিএসটি, বাতাসায় কত জিএসটি। লোকে কি খাবে? খাবো কি? মানুষ খাবে কি?
আমাদের মুড়ি ফিরিয়ে দাও, নইলে বিজেপি বিদায় নাও। আমাদের জিনিস ফিরিয়ে দাও, নইলে বিজেপি বিদায় নাও। আচ্ছা এবার বলো, তাহলে সব জিএসটি, রোগী বিছানায় ভর্তি হলেও জিএসটি, বেড ভাড়াতেও জিএসটি, মরে গেলে কত জিএসটি? আজকে টাকার দাম সবচেয়ে কমে গেছে। সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম ভুটানের ব্যবসাও প্রায় অচল হওয়ার মুখে। সারা বিশ্ব জুড়ে এক অর্থনৈতিক দুর্বিষহ অবস্থা। গ্যাসের দাম কত? ডিজেলের দাম কত? পাওয়ারের দাম কত? গ্যাস বাড়ানোর সরকার আর নেই দরকার, ডিজেল বাড়ানোর সরকার আর নেই দরকার, পেট্রোল বাড়ানোর সরকার আর নেই দরকার, মুড়িতে ট্যাক্স বসানোর সরকার আর নেই দরকার, দইয়ে ট্যাক্স বসানোর সরকার আর নেই দরকার, স্বাস্থ্য ভাড়া বাড়ানোর সরকার আর নেই দরকার, রাস্তায় রাস্তায় দাঙ্গা করার সরকার আর নেই দরকার, গুন্ডামি করার সরকার আর নেই দরকার, বাংলা ভাঙার সরকার আর নেই দরকার, দেশ ভাঙার সরকার আর নেই দরকার। বাংলার মানুষ মাথা নত করতে জানে না, বাংলার মানুষ মাথা উঁচু করে চলে। आप हमको बंद करके नहीं रख सकते हैं कि हम कभी झुकता नहीं है। हम देश पे झुकता है, हम देश का बात पे झुकता है, देश का प्यार पे झुकता है, देश पर काम के झुकता है। देश का कोई बुरा दिन आए तो हम देश का पक्ष में खड़ा रहेगा, लेकिन हमको ईडी से मत डराओ, हमको सीबीआई से मत डराओ, हमको रुपया बंद करने से मत डराओ, ऐसा बात मत करो। এখনো কি সব বিল নিয়ে আসছে? কোনো মাথা নেই, মুন্ডু নেই, সবার চাকরি খেয়ে নিচ্ছে। রেলে ৮০,০০০ চাকরি উঠিয়ে দিয়েছে। তাহলে বলুন, যদি অগ্নিপথে 4 বছরের জন্য 40,000 20,000 নেব বলে, 80,000 তো উঠিয়ে দিল। কোল ইন্ডিয়া উঠিয়ে দিল, টি বোর্ড উঠিয়ে দিল, জুট ইন্ডাস্ট্রি শেষ করে দিল, সেল কোম্পানি বিক্রি করে দিচ্ছে, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিচ্ছে, এমনকি ভারতবর্ষের পুরনো পার্লামেন্ট সেটাও দিয়ে দিয়েছে, সেটাও দিয়ে দিয়েছে। কোনো ইনস্টিটিউশনের ঐতিহ্য মানে না, নতুন করে ইতিহাসের বই লেখা হচ্ছে, নতুন করে ওরা ঠিক করবে। যারা জীবনে স্বাধীনতা যুদ্ধই করলো না, যারা জীবনের দেশটাকেই জানলো না, তারা নাকি দেশের ইতিহাস গড়বে, তারা নাকি দেশের ইতিহাস তৈরি করবে। আর এখন থেকেই ধমকাচ্ছে। ইলেকশনের সময়, প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের সময়, আরে ভাই, আমি চাইলে অনেকগুলো বিজেপির ভোট নিতে পারতাম, আমি করিনি। আমাদের নরেশ আছে এখানে এমএলএ, ও লক্ষাধিক ভোটে জিতিয়েছিল, তাই ওকে লক্ষ নরেশ বলি আমি। আসানসোলে তাকে ফোন করে বলছে गद्दाररा যে ভোট দাও, नहीं तो तुमको ईडी पकड़ाएगा, हम ईडी का पास भेज देंगे। এই সব চলছে, এই সব করে হয়। আমি এবার ছাত্র যৌবনকে জিজ্ঞেস করব, আগামী দিন ছাত্র যৌবন, আমি সব দেখতে পাচ্ছি ইয়াং জেনারেশন, স্টুডেন্ট জেনারেশন, ইয়াং জেনারেশন লড়বার জন্য তৈরি আছেন, আমার সাথে লড়বেন। आसनसोल जैसे शहर में कौन नहीं चाहता कि अपना मकान हो, वो भी आलीशान। एनविलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, तो जल्द ही बुक करें। हमारा पता है सोस्ट्री नगर, इस्माइल नियर ASN प्ले स्कूल। कॉन्टैक्ट करें 9332993881।
कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा। नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। देखिए, ये गरोई नदी है, पूरा रेल पर अंचल जो है, हर साल बाढ़ आता है। हम लोग छोटे से बड़े हो गए यहीं पे देखते हैं, हर साल बाढ़ आता है और गरोई नदी के किनारे बहुत सारा इलाका जलमग्न हो जाता है। और हमारा वार्ड नंबर 27 और 29 विशेष करके 60% इलाका, 60% ऐसा इलाका है जो जल बाढ़ आता है उससे प्रभावित होता है। मवेशी बह जाते हैं, घर बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता है और मैंने जीना एकदम दुभर हो जाता है। हर साल 1-2 नौजवान आप देखेंगे इस रेल पर अंचल से, आप लोग देखते हैं न्यूज़ में आता है कि बाढ़ का पानी में बह के मर गया। लेकिन इसके बावजूद इस नदी के लिए कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अभी तो टेंडर हुआ था कॉर्पोरेशन की तरफ से, साफ सफाई का बोला जा रहा था, फिर क्या हुआ? आप देख सकते हैं, अगर टेंडर हुआ है, सफाई हुआ, टेंडर हुआ है, जरूर हुआ, हम लोग देखिए बोर्ड मीटिंग में सफाई हुआ है। आप देखिए ना, कैमरा घुमाइए, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। नदी का क्या अवस्था है। हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे साफ सफाई में। वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 29, इन 2 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर जीते हैं। यहाँ का लोग, जैसे लगता है कि यहाँ के लोगों ने अपराध कर दिया भारतीय जनता पार्टी को वोट देके। इस तरह का रवैया नगर निगम के द्वारा यहाँ के निवासियों के संग किया जा रहा है। जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के पार्टी से जीते हैं वहाँ पे साफ सफाई किया जा रहा है। 30 नंबर 31 नंबर में साफ सफाई हुआ, लेकिन 27 और 29 को इधर से छोड़ दिया गया, मशीन दूसरा तरफ से आगे चला गया। लोग आपका सहयोग कर रहे हैं एकदम। यहाँ का आम जनता को आप देखिए, ठीक है, सभी कोई सहयोग नहीं किया, हम लोग तो जनता के साथ हैं। यहाँ का जनता है, वही काउंसलर बनाया है, उन्हीं से हैं, उन्हीं के द्वारा
उन्हीं पे हम लोग निर्भर हैं। यहाँ का मानव जो साधारण नागरिक है बहुत सहयोग कर रहे हैं हम लोग को। आपका नाम पूछिए। मेरा नाम गौरव गुप्ता, पार्षद वार्ड नंबर 27, भारतीय जनता पार्टी। I also actually this program is the combined understanding each other and it is a fine ceremony. Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Lala Lajpat Rai, and many more sacrificed their lives and struggled so that today we can breathe independently. But today our country needs patriotism in many other aspects also. Now the question is, are children susceptible to patriotism? Definitely yes. How can we forget the great Indian patriot Khudiram Bose and many more? Vivek Agarwal, second position, Geeta Das, third. The Honorable MLA. Third, Ankita Das of 10A. Next are the recipients of Eastern Railway Elementary School, Suchona Desha. इस स्कूल को मॉडल स्कूल की तरह डेवलप किया जाना है और जैसे निर्देश आए हैं रेलवे बोर्ड द्वारा माननीय मंत्री जी के अप्रूवल से कि जिन जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या सफिशिएंट है शायद तो उन सबको मॉडल स्कूल की तरह जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ बना के और स्कूल को आगे बढ़ाना है। स्मार्ट क्लासेस, हाँ, मतलब हर चीज़ जो फ्यूचर में जैसे डेवलपमेंट्स होंगे, जैसे मैंने बोला कि समय के साथ सारी चीज़ें आएंगी, स्मार्ट क्लासेस भी आएंगे, सारे लेबोरेटरी सब अपग्रेड होंगे, प्लेस ग्राउंड्स वगैरह में भी जो फैसिलिटी चाहिए, डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उन सब में भी इनपुट दिया जाएगा। सर आज का क्या कार्यक्रम? एक कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आप जानते हैं चल रहा है, उसमें एक भारत की रेलगाड़ी का एक आइकॉनिक वीक रेलवे द्वारा मनाया जा रहा है और इसमें हम रेलवे ने जो आज़ादी के साथ ग्रो किए हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि रेलवे भी अब 150 साल की हो गई और आज़ादी के संघर्ष और आज़ादी के बाद रेलवे धीरे धीरे पूरे देश में फैली है। तो अब एक इस संदेश के साथ कि आज़ादी का महत्व क्या है और जो आज की हमारी नई जनरेशन है उनके बीच में वो ज्ञान देना कि ये आज़ादी हमने कितनी मेहनत से, कितनी कुर्बानियों से पाई है, ताकि उन्हें भी देश के प्रति एक लगाव डेवलप हो और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जरिए, इसी का प्रयास है जिसमें कि हम लोग लगे हैं। খুবই ভালো লাগছে এবং আরও ভালো লাগছে যে আজকে মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি আমার কথা রেখেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার কথা রেখেছেন। আসলে আমিও তো এখান থেকেই বড় হয়ে ওঠা, জন্ম, এই তিনটে স্কুলকে ছোটোবেলা থেকে দেখে এসেছি। এই স্কুলগুলোতে আমার বন্ধুরা পড়তো আর সেই স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে এটা মানে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না, কিন্তু সবটাই ওনাদের ওপর ছিল, ওনারা মেনেছেন, আমার সম্মান রেখেছেন, আমি কৃতজ্ঞ তাদের কাছে। আজকে এসেছি এখানে আজাদি কে অমৃত মহোৎসবে। আপনারা জানেন আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 75 বছর সেলিব্রেশন হচ্ছে এবং সেই সেলিব্রেশনেরই একটি অনুষ্ঠান আজকে হলো, যেখানে টপিক ছিল যে পেট্রিয়টিজম, আমাদের স্কুলের বাচ্চারা, ছোট বাচ্চারা তারা কিভাবে পেট্রিয়টিজম দেখাবে, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়াটাই কি পেট্রিয়টিজম নাকি অন্য কিছুকেও পেট্রিয়টিজম বলে, এবং এই সব নিয়ে স্পিচ দেওয়া, স্পিচ লেখা, পোস্টার বানানো, বিভিন্ন কম্পিটিশন হয়েছিল। আজকে তার
অ্যাওয়ার্ড ফাংশন হলো, আমি এবং অনারেবল ডিআরএম স্যার ছিলেন। খুবই ভালো লাগলো। স্কুলের সেই ছোটোবেলাকার দিনগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। বাট এমএলএ হয়ে এইটুকু করতে পেরেছি আমার বিধানসভা, আমার জেলার জন্য, তার জন্য আরও ভালো লাগছে। सही है, बनाइए, ठीक है, रेडी है। आज पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परिवार में हम लोगों ने एक नया सदस्य पाया, और वो सदस्य जो है हमारे बादशाह भाई उर्फ निहाल, वार्ड नंबर 83 से बिलोंग करते हैं। आज वो हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं, तो इनका मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ और बहुत शुक्रगुजार करता हूँ इनका कि इन्होंने लोगों के पीछे जाने वाले पार्टी में नहीं चुनकर अपनी क़यादत वाली पार्टी को ज्वाइन कर आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये एक जिंदा दिल इंसान है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के निर्देश अनुसार हम लोग पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से एजाज भाई, आतिफ मलिक साहब, असरत भाई, हम सब मिलकर इनका वेलकम करते हैं। प्रोग्राम किया आज आपने? देखिए, आज हम लोगों का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला पश्चिम बर्दवान के सदर जनाब दानिश अजीज़ साहब की क़यादत में एक प्रोग्राम, क्या मैं समझता हूँ कि एक अच्छा दिन कि आज हमारे आसनसोल के वार्ड नंबर 83 से, जो इस्माइल गांव का एरिया पड़ता है और बरनपुर का एरिया पड़ता है, तो वहाँ से हमारे भाई जनाब निहाल भाई हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने का वादा किया है कि हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। उनका वेलकम है, और किसी मतलब ऐसे पार्टी के पीछे आके जो हमें अपना यूजेबल सामान समझे, उनके पीछे नहीं रहकर भाइयों की तरह भाई से मिलकर, और दूसरे भाइयों का जो हमारा अवाम आसनसोल है उसका काम करने के लिए निहाल भाई सामने आए हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी इसी तरह काम करते रहेंगे, और लोगों का जो मतलब मसाइल होगा उसको पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपका नाम? हमारा नाम एजाज अहमद, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला पश्चिम बर्दवान। एक अच्छा पार्टी है, और हम लोग को शुरू से करने का चाहत था MIM को, और हम लोग के जो लीडर हैं, जो हम लोग का MIM के असदुद्दीन अवैसी साहब, वो बहुत मतलब हम लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं कि हर चीज़ के लिए जायज़ नाजायज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। इसके लिए कि हम MIM ज्वाइन किए। आपका नाम? मोहम्मद निहाल। जा रहे हैं हम लोग ममता बनर्जी के पुकार पे कोलकाता जा रहे हैं, धर्मतला। कहाँ से? बराकर, वार्ड नंबर 67। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज अंसारी है, लाइफ बबलू। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कोलकाता जा रहे हैं। किस लिए? ममता जी का प्रोग्राम इसीलिए जा रहे हैं। कहाँ से? बराकर से। आपका नाम? कार्तिक दीवार। कहाँ जा रहे हैं? बराकर से हम लोग धर्मतला जा रहे हैं, हर साल जाते हैं, इस बार भी जा रहे हैं। किस लिए? दीदी का 21 जुलाई को जो शहीद दिवस मनाया जाता है, हर साल की तरह पिछले 2 साल नहीं हुआ था कोविड प्रोटोकॉल के चलते, लेकिन इस बार हो रहा है, पूरा जोर शोर से जा रहा है। कहाँ से आप? बराकर से जा रहे हैं। आपका नाम? कहाँ जा रहे हैं आज? हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं, धर्मतला। किस लिए? तो ममता बनर्जी का पुकार पर हर साल जैसे जाते हैं, इस बार भी वही आवाज़ उठाया, शहीद को स्मरण करने के लिए, परिवार को पास हम लोग खड़ा होने के लिए। कहाँ से? बराकर से आ रहा है, किशनगढ़ सातपुरिया से आ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम है सुबल चक्रवर्ती। कहाँ जा रहे हैं आज दादा? हम लोग धर्मतला जा रहे हैं 21 जुलाई शहीद दिवस के उपलक्ष्य में। कहाँ से? बराकर से जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है सजल घोष, बराकर। বলুন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?
আমি বরাকর থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ মিঠাবাদ গ্রাম আমরা কলকাতা আছি মমতাদির মিটিংয়ে কি জন্যে মিটিংয়ে যাচ্ছি আমাদেরকে দিদি ডেকেছে যাচ্ছি আপনার নাম অনিতা বাউরি কোথায় যাচ্ছেন কি জন্যে মিটিংয়ে কোন জায়গা থেকে ধর্মতলা বরাকর থেকে আমরা আসছি বেগুনিয়া বরাকর আপনার नाम নীলিমা সেন कहाँ जा रहे हैं आज? हम लोग ममता बनर्जी का पुकार पर कलकत्ता जा रहे हैं धर्मतला में। कहाँ से हम लोग कुल्टी से जा रहे हैं, कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से बराकर से हम लोग जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सुब्रत राय। कहाँ जा रहे हैं आप? धर्मतला। किस लिए? आज शहीद सर के मीटिंग पे जा रहे हैं हम लोग। कहाँ से? वार्ड नंबर 103 से आसनसोल के मेरा काउंसिलर है साधनपाल, एक्स काउंसिलर। आपका नाम? विवेक राय। हम लोग जा रहे हैं धर्मतला ममता बनर्जी का मीटिंग में। कहाँ से? नियामतपुर से। आपका नाम? मेरा नाम राजेश साहब।